رابطہ کریں, جس کو کوئی مسئلہ ہے وہ مجھے بتائے. آپ دیکھیں ان کے ساتھ ہم کرتے کیا ہیں. جس ریاستی ادارے سے کہیں گے نا ان کا ہیڈ وہاں پہ فون کرے گا. میں دیکھتا ہوں کہ پھر وہ کیسے نماز پڑھاتا ہے اس مسجد کے اندر. صرف میرے ایک فون کال اور اشارے کے منتظر ہیں لوگ ان کو ڈھونڈتے پھریں گے. یہ سارے بنیں گے مسنگ پرسن. کرنا خود کچھ نہیں. میں نے اسلامی نظام اگر نہیں آتا اس ملک میں, اس سے بہتر ہے یہ سیکولر ہو جائے. نہ ادھر رولا پینا. ٹھیک ہے, تیری وجہ تو ساری مسجد دے نمازی خراب ہوتے ہیں. کتنا خیال ہے ٹھیک ہے نا, یار اللہ کی صدا ہوئی ہے. مرزا صاحب امت مسلمہ کے دشمن تو تھے ہی تھے, پاکستان کے بھی دشمن نکلے. آج کی ویڈیو چلانے سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مرزا صاحب کے ایک شاگرد نے مسجد میں جا کر امام صاحب کی اجازت کے بغیر ان کی ویڈیو بنائی. یہ پوری ویڈیو آپ نیٹ پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں گفت و شنید جو چل رہی ہے, امام صاحب اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کی وجہ سے نمازی جو ہے وہ کم ہو رہے ہیں, فتنہ فساد پیدا ہو رہا ہے. اور اس کو اس بات سے روکنے کے لیے آپ نے ان کو کہا کہ بھائی آپ کسی اور مسجد میں چلے جائیں. اور اس کی علمی حیثیت یہ ہے کہ امام صاحب نے اس کو کہا کہ بھائی صحیح بخاری کا نام بتا دو. حضرت صاحب کو صحیح بخاری کا نام بھی نہیں آیا, مرزا صاحب کو بھی نہیں آتا ہوگا کہ کسی ویڈیو میں بھی آپ نے صحیح بخاری کا اصل نام نہیں سنا ہوگا. اصل نام کیا ہے؟ الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و سننہ و ایامہ. یہ نام ہے پورا صحیح بخاری کا. یہ نام مرزا صاحب کو بھی نہیں آتا ہوگا, اور مرزا صاحب اگر رٹ لیں گے نا تو پڑھیں گے تو میں ان سے ترکیب پوچھوں گا کہ اس کی ترکیب کیا ہے. مرزا صاحب کے شاگرد نے جو یہ حرکت کی کہ امام صاحب کی اجازت کے بغیر ان کی ویڈیو بنائی, یہ اخلاقاً بھی جرم ہے, شرعن بھی جرم ہے, اور پاکستان کے قانون میں بھی جرم ہے کہ پاکستان کا قانون پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کے تحت سیکشن نمبر 20 کی یہ وائلیشن ہے کہ جس کے اندر بالکل یہ قانون واضح بیان کیا گیا ہے کہ آپ کسی کی اجازت کے بغیر اس کی ویڈیو نہیں بنا سکتے اور اس کو اپلوڈ بھی نہیں کر سکتے. اگر ایسا کریں گے تو زیادہ سے زیادہ 3 سال کی قید ہوگی اور زیادہ سے زیادہ 10 لاکھ روپے کا جرمانہ ہوگا, یا یہ دونوں معاملات ہو سکتے ہیں. امام صاحب بالکل نہ گھبرائیں اور اپنی قانونی چارہ جوئی بالکل اختیار کریں. اس بات پر مرزا صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ اپنا اچھا استاد ہونا ثابت کریں اور اس کو اپنے شاگرد کو منع کرتے, بھائی یہ وائلیشن کرنے کی تو اجازت نہیں ہے قانون کی, اور آپ اس انداز سے جا کر جو ہے امام صاحب کے ساتھ بحث کریں گے تو کیسے امام صاحب آپ کے ساتھ سیدھے منہ سے بات کریں گے. بلکہ آپ کو چاہیے تھا آپ جا کے دعا سلام کرتے, امام صاحب سے عاجزی کے ساتھ ملتے اور اس کے بعد کہتے جی مجھے یہ مسئلہ ہے, آپ میرا یہ مسئلہ حل کر دیں. لیکن حضرت صاحب کیا تربیت کر رہے ہیں وہ سنیں. اس لیے ڈٹے رہیں, اور میں اس بچے کو اس ویڈیو کی وساطت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس نے میرا اسٹوڈنٹ ہونے کا حق ادا کیا ہے. واہ, ڈٹے رہیں آپ اپنی اس وائلیشن کے اوپر, جو آپ نے شریعت کی وائلیشن کی, اخلاقیات کی وائلیشن کی, قانون کی وائلیشن کی, ان سب چیزوں پر آپ ڈٹے رہیں اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور آپ نے میری شاگردی کا حق ادا کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا صاحب یہ اس بات میں استادی اپنی دکھا رہے ہیں کہ یہ ساری چیزوں میں وائلیشن سکھا رہے ہیں اپنے شاگردوں کو, اب وہ چاہے قانون میں ہو, چاہے وہ کسی شریعت کے کسی مسئلے میں ہو, چاہے وہ اخلاقیات کے کسی مسئلے میں ہو, ساری چیزوں کے اندر وائلیشن کرنا مرزا صاحب سکھا رہے ہیں. اور ان کے شاگرد نے اس کے اندر کما حق ہو ان کا حق ادا کر دیا. اب آگے دیکھیں, اس کو مزید شے دے رہے ہیں, اور اپنے جتنے بھی پورے پاکستان بھر میں یا دیگر دنیا کے اندر جس جگہ بھی ان کے شاگرد ان کو سنتے ہیں, یہ ان کو کس انداز سے فرقہ وارانہ گفتگو کر کے ان کو اشتعال دلائیں گے. اب وہ سنیں آپ. اب بھی وہ ڈٹا رہے, اور اگر کوئی زیادہ مسئلہ ہو ہمیں بتائیں. پاکستان میں ایٹ لیسٹ کسی کو انشاءاللہ تعالی دوسری دفعہ جرت نہیں ہوگی. آپ بھائی کیا ہیں, پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں کہ جو پاکستان میں جی کسی کو جرت نہیں ہوگی. ایسے بات کر رہے ہیں کہ جیسے کہ سارے ادارے ان کے تحت ہیں, بس ایسے چٹکی لگانے کی دیر ہے, سارے کام ہو جائیں گے. آپ صرف اکیڈمی میں رابطہ کر کے اس مسجد کا نام بتائیں, انشاءاللہ تعالی جس ریاستی ادارے سے کہیں گے نا ان کا ہیڈ وہاں پہ فون کرے گا. ہاں جی, سارے کے سارے نوکر جو ٹھہرے, ٹھیک ہے, وہ جتنے بڑے ہیڈ ہوں گے, حضرت صاحب کا چھوٹا سا پتوکڑا جو ہے وہ جا کر وہاں پر وائلیشن کرے گا, وہاں دوسرے فرقوں کی مسجدوں میں جا کر ان کے خلاف گفتگو کرے گا. اب جب مسئلہ بنے گا وہاں پر بڑے بڑے ادارے کے افسران آ جائیں گے اور کہیں گے بیٹا مرزا صاحب کے آپ چونکہ شاگرد ہیں, ماں صدقہ کرے بیٹا آپ تھوڑا پیچھے ہو جائیں, ہم امام صاحب سے نپٹتے ہیں. اور خدا کے بندے یہ کون سی گفتگو کر رہے ہو. اور پاکستان کے ادارے جو ہے نا اس انداز کے ہیں, پوری دنیا کو کیا بتانا چاہتے ہو. ایک دن میں ان کی پیشی کروائیں گے ان امام مسجدوں کی جو لوگوں کو مسجدوں میں نماز پڑھنے سے روک رہے ہیں. گھر کی کھیتی ہے بھائی, کچھ بھی کر سکتے ہیں. ان کی جرت ہے, نماز پڑھنے سے نہیں روک سکتے. پاکستان کے قانون میں آپ مسجد میں ہر مکتبہ فکر کا بندہ نماز پڑھ سکتا ہے. بالکل پاکستان کا قانون ہے کہ ہر مکتبہ فکر کا بندہ نماز پڑھ سکتا ہے, لیکن نماز پڑھے نا, بدماشی تو نہ کرے نا.
वीडियो ना बनाए और जो है ना वो इमाम साहब के साथ जो है ना बहस और तकरार इस अंदाज से ना करे। अगर बहस और तकरार करनी भी है, कोई बात पूछनी है, तो अदब के दायरे के अंदर रहते हुए बात करे। ये कौन सा अंदाज हुआ कि खड़े होकर वीडियो बना रहा है इमाम साहब की मर्जी के बगैर और उसको जो है ना अपलोड भी कर रहा है। ये हजरत साहब पाकिस्तान का कानून नहीं है। तोड़ मरोड़ कर जिस तरह आप शरीयत को बयान करते हैं, पाकिस्तान के कानून के ऊपर भी हाथ साफ ना करें। हाँ, दरसो तदरीस का मसला हो, वो इनकी जागीरें बनी है, वो अलग बात है, नमाज पढ़ने से नहीं। अब तो पाकिस्तान का सख्त कानून है इस हवाले से कि तमाम कलदम जो तंजीमें नॉन स्टेट एक्टर है ना, इनको कोई पनपने नहीं देंगे। इन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया। इस्लामी निजाम अगर नहीं आता इस मुल्क में, इससे बेहतर है ये सेकुलर हो जाए। कम से कम मुसलमानों को आजादी तो हो जिस तरह काफरों के मुल्कों में आजादी है। आप इतने मायूस क्यों हैं इस्लाम के आने से, और इतने मायूस होकर आप ये क्यों गुफ्तगू कर रहे हैं? अगर इस्लाम नहीं आ सकता तो लिहाजा इसको सेकुलर कर दो, मुसलमानों को खुली इजाजत दे दो, जैसे काफिरों को है, काफिरों के साथ भी मिला रहे हैं। तो यहां से पता लगा कि इनका मिशन जो है वो इस्लाम को हटाकर सेकुलर लोगों को प्रमोट करना है, ना कि इस्लाम को आम करना। ये अपना मकसद अपनी इस वीडियो के अंदर बिल्कुल वाजे करके बयान कर रहे हैं। तो मैं कहता हूं जितने भी पाकिस्तान के इदारे हैं वो इस बयान के ऊपर तवज्जो करें और मिर्जा साहब को लगाम डालें। इन मौलवियों से जान छूटे मुसलमानों की जो बच्चों को वर्गला रहे हैं। तो ये सारे बच्चे हमारी एकेडमी में राब्ता करें। 032159000162 हमारी एकेडमी जेलम का नंबर है। 032159000162 ये डिस्प्ले भी करवा दिया इन्होंने। राब्ता करें, जिसको कोई मसला है वो मुझे बताए। आप देखें इनके साथ हम करते क्या है। यहां पर देखें ये अपने शागिर्दों को शे दे रहे हैं कि जाकर तुम उनकी मस्जिदों के अंदर इस तरह फितना फसाद करो, कोई बात नहीं, तुम्हारा अब्बू बैठा हुआ है, बिल्कुल जो है ना ऐसे इदारों को जो है ना वो चुटकी ऊपर नचाएगा, बड़े बड़े अफसरान जाकर वहां पर तुम्हारा मसला हल करेंगे, तुम्हें तो कुछ भी नहीं होगा। और हजरत साहब की खुद की दलेरी आप देख लें। तारिक मसूद आया था और कई दिन इनके पास वहां जेहलम में रहा। हजरत साहब अपनी बिल से नहीं निकले और कहा कि जी मुझे किसी ने फोन कर दिया था कि नहीं जी आपने निकलना नहीं है वगरना बड़ा फितना फसाद हो जाएगा। फिर जो ही तारिक मसूद साहब चले गए, पीछे से ये हजरत साहब निकले और कहा जी ओ हो देखें तारिक मसूद साहब आए थे, जो ये किया तो वो किया, फिर बड़ी बड़के मारी, लेकिन फिर काम बना नहीं है। तो हजरत साहब की इतनी दलेरी है तो मैं तालिब इल्मों को कहूंगा, हजरात जरा तवज्जो कीजिएगा। आप उनके कंधे पर रख के बंदूक तो चलाएंगे, लेकिन वो कंधा कैसे गायब होगा ये आप जब फंसेंगे उस वक्त पता लगेगा। जिन इमामों से आप जाके टक्कर लेंगे और वहां के इलाके वाले जब आप पर चढ़ाई करेंगे, उस टाइम बचाने के लिए मिर्जा साहब आपको नजर भी नहीं आएंगे और ऐसे गायब होंगे जैसे गद्दे के सर से सींग गायब होते हैं। ये यहां पर पाकिस्तानी कानून प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट के सेक्शन नंबर 9 और 10 की वायलेशन कर रहे हैं, जिसमें बिल्कुल वाजे है कि आप फिरका वाराना गुफ्तगू नहीं कर सकते। तो ये हजरत अपनी बात से जो है वो फिरका वाराना दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहे हैं कि भाई जाओ जितने भी फितने फसाद होंगे वो मैं देख लूंगा, बस तुमने एकेडमी में फोन कर लेना है, उसके बाद हम अगले इमाम को जो है वहां से गायब करवा देंगे। इस कानून की वायलेशन करने पर क्या सजा है? 7 साल की कैद हो सकती है इसके अंदर और 1 करोड़ का जुर्माना हो सकता है। तो मैं कहता हूं मिर्जा साहब के जितने भी चाहने वाले हैं, जरा इन चीजों को देखकर, इन कानूनों को पढ़कर और किसी सियाणे वकील से राब्ता करके फिर इस तरह के मामलात में हाथ डालिएगा जिनका मिर्जा साहब आपको दावत दे रहे हैं। किसी एजेंसी को इन्वॉल्व करना पड़ा, किसी रियासती इदारे को इन्वॉल्व करना पड़ा, लोग इनको ढूंढते फिरेंगे अल्लाह के फजल से। एजेंसियां जी इनके इंतजार के लिए बैठी हैं, कब हजरत इशारा करें और कब हम जो है ना अगले के बंदे को चुक चुकैया कर दें। और खुदा के बंदे क्या बातें कर रहे हो। इदारों को जो है ना बिल्कुल तुमने अपनी उंगली की जो है ना वो कठपुतली समझ लिया, एजेंसियों को अपनी उंगली की कठपुतली समझ लिया। और तुम्हारे जो शागिर्द हैं और जो तुम्हारे ये छोटे छोटे लौंडे हैं, ये जितनी मस्तियां करते फिरेंगे उनके पीछे एजेंसियां फिरेंगी और उनको सामने वाले मद्दे मुकाबिल को जो है ना वो मारती फिरेंगी और उनको जो है ना सजाएं देती फिरेंगी। और खुदारा क्या कर रहे हो यार। इस तरह के मामलों में बिल्कुल मैं टॉलरेट नहीं करूंगा। मेरी जात को कोई कुछ कहता है मैं बर्दाश्त करूंगा, हमारी दावत के बारे में प्रोपेगेंडा करता है हम इल्मी मुकाबला करेंगे। लेकिन अगर कोई हमारे स्टूडेंट्स को अल्लाह की बनाई हुई मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ने देगा तो कुरान में तो कहे उससे बड़ा जालिम कोई नहीं जो मस्जिदों की बर्बादी चाहता है। वो भूल जाए कि उसको कोई इस तरह का मामला मिलेगा। कोई हमारे किसी स्टूडेंट को थ्रेट करता है, अगर वो मर्द है ना तो अपना मोबाइल नंबर और अपना नाम हमें सिर्फ बताए, मैं देखता हूं कि फिर वो कैसे नमाज पढ़ाता है उस मस्जिद के। अब हम इस लेवल के ऊपर भी इन मामलात को लेके चलेंगे। मैं अभी तक बहुत टॉलरेट कर रहा था, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि हमारी दावत ने वो कद काट हासिल कर लिया है। उम्मत को नजर आ रहा है कि एक बंदे ने आके इनकी सदियों की अंपायर उखाड़ के रख दी है।
अब इनकी दावत ने ये कद काट हासिल कर लिया है कि आप ये जिसको चाहे धमकी दें, जिसकी चाहे जो है ना वो उसको गायब करवा दें, उसके साथ जैसी मर्जी ज्यादती करवा दें और जिस तरह मर्जी चाहे पाकिस्तान के तमाम कवानीन की वायलेशन करें और इनके शागिर्द जो मर्जी करते फिरें। ये इनको लगता है किसी एजेंसी ने जो है या पाकिस्तान के कानूनी अदारे ने इनको जो है वो NOC बनाकर दे दी है कि भाई हजरत साहब अब आपको कोई कुछ नहीं कह सकता, बहुत दीन की खिदमत आपने कर ली है। और भाई क्या बताना चाहते हो पाकिस्तान के हवाले से पूरी दुनिया को कि जिस तरह तालिबान दंदनाते फिरते रहे, अब मिर्जाई दंदनाते फिरेंगे। मिर्जाई से मुराद वो मिर्जाई नहीं, मिर्जा साहब इंजीनियर साहब को मानने वाले मिर्जाई, तो वो दंदनाते फिरेंगे। और खुदा के बंदे ये क्या कर रहे हो? और ये चीज ऊपर से लेके नीचे तक तमाम लोगों की नजर में है। सिर्फ मेरे एक फोन कॉल और इशारे के मुंतजिर हैं लोग कि बताएं करना क्या है किसी के साथ। तो हम वो रास्ता नहीं इख्तियार करना चाहते। तो ये जिसको मसला है हमें बताएं, हम प्रोसीजर बताएंगे। पहले आप लोकल थाने में एप्लीकेशन दें उस बंदे के नाम से कि मुझे नमाज पढ़ने से रोक रहा है। वाह, पहले तो चंगा अपने तालिब इल्मों को खुश किया हजरत साहब ने, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अब्बास एकेडमी में कॉल करने की देर है, बाकी आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप घर में टांग पे टांग रखकर अपनी जो है ना वायलेशन के जो है ना फिर मजे लूटिएगा। हजरत साहब कह रहे हैं आप कॉल करेंगे, हम आपको बताएंगे। आप सबसे पहले जो है ना वो दरखास्त दें, फिर दरखास्त के लिए जब आगे से नहीं सुनी जाएगी फिर आपने जो भी आगे मामलात करने वो आपकी सरदर्दी है। मिर्जा साहब बीच में आपको नजर नहीं आएंगे। तो ये आगे आपको यही बताएंगे जो अभी बता रहे हैं। फिर देखें जरा इनका सारा इश्क रसूल, इनका इश्क सहाबा, हम देखते हैं वो पड़ा होगा इश्क औलिया इनका। देखें इश्क रसूल, इश्क सहाबा, इश्क औलिया वो पड़ा होगा। असल में इनके मकासद क्या हैं? एक तो वायलेशन करना कानून की, हर तरह के कानून की, और दूसरा ये कि दहशतगर्दी को प्रमोट करना। जिस तरह चाहे मर्जी इनके तालिब इल्म घुस जाएं और जाकर जो है ना वो जो मर्जी करते फिरें, मिर्जा साहब जो है ना उनको बचाएंगे। तीसरा ये है कि इश्क रसूल को ख़त्म करना, वो साइड पे पड़ा होगा। इश्क सहाबा साइड पे पड़ा होगा, इश्क औलिया साइड पे पड़ा होगा। और फिर सेकुलरिज्म इसको आम किया जाए। और पाकिस्तान का इस्लामी निज़ाम तो होना नहीं है, चूंकि वो तो मैं होने नहीं दूंगा, इसलिए जो है ना फिर सेकुलरिज्म को वहां पर आम किया जाएगा। ये है इनकी वीडियो से इनका मकसद, जो इन्होंने बिल्कुल अब वाज़ेह बयान कर दिया है। आप आगे देखें मजीद कैसी धमकी दे रहे हैं। जब इनकी नौकरी यहां से फारिग होंगी ना और इनकी जमानतें कराते फिरेंगे और ढूंढते, पहले तो जमानत तक तो बात नहीं जानी, पहले तो ये सारे बनेंगे मिसिंग पर्सन। इस तरह के लोग जो है ना वो मिसिंग पर्सन बनते हैं, सब बनेंगे मिसिंग पर्सन। हजरत ये कौन सी धमकी है जो इंजीनियर मिर्जा साहब लोगों को दे रहे हैं? मिसिंग पर्सन यानी कि मैं उठवा दूंगा, ऐसे गायब करवा दूंगा बंदे को, बंदे का पता ही नहीं लगेगा। मैं कहता हूं ये कौन से कानून की बात कर रहे हैं हजरत साहब? पाकिस्तान में ऐसा कौन सा कानून है जिसमें मिसिंग पर्सन का जो है ना वो पॉइंट ऑफ व्यू है और ये कॉन्सेप्ट है कि मिसिंग पर्सन ही हो जाए? और भाई एट द एंड पाकिस्तान के कानून के अंदर जो है ना फांसी की सजा है, इसके अंदर भी जो उस बंदे के मुताल्लिकीन होते हैं वो उसके साथ मिलते रहते हैं और एंड में उनके लाश भी उनके हवाले की जाती है। और हजरत साहब तो ये धमकी दे रहे हैं कि मैं ऐसा बंदे को गायब करूंगा और ऐसा मारूंगा कि उसकी लाश भी आपको नहीं मिलेगी। और यह किस कानून की वायलेशन है? यह पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन नंबर 506 की वायलेशन कर रहे हैं, जिसके अंदर यह बिल्कुल वाज़ेह कानून है कि जो किसी शख्स को धमकी देगा कि मैं तुझे गायब करवा दूंगा, मैं तुझे उठवा दूंगा, तेरे बच्चों को उठवा दूंगा, तुझे उठवा दूंगा, यह शख्स इस कानून की वायलेशन करने वाला है। और इसको क्या सजा दी जाएगी यह कोर्ट आपको बताएगा। किसी वकील से भी जाके पूछ लीजिएगा और किसी कानून दान किताब से भी। हजरत साहब आप इल्मी किताबें हैं वो भी पढ़ लीजिएगा। तो मैं कहता हूं मिर्जा साहब के चलो थोड़ा सा होश करना और फिर वो काम करना जो मिर्जा साहब आपको दावत दे रहे हैं। अब आगे सुने ये क्या कहते हैं। फिर बाद में चीखते हैं कि जी हमने किया क्या था, तुम लोग ये हरकतें कर रहे हो ना, तो देखो फिर तुम लोगों के साथ होती क्या है। हम पहले कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे, उसके बाद हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म करवाएंगे। जब आपका कानून के जरिए हल नहीं हो रहा तो आपको इंतजार का कहा जाता है। आप इंतजार करें यहां तक कि आपको इंसाफ मिल जाए, ना कि आप गैर कानूनी रास्ते को इख्तियार करें। ये सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर पाकिस्तान के तमाम कानून की वायलेशन का हुक्म सादिर फरमा रहे हैं अपने शागिर्दों को। इंशाअल्लाह ताला करना खुद कुछ नहीं, मैंने जो पाकिस्तान के आइन के तहत होगा वही कुछ होगा इंशाअल्लाह ताला। मैं फेडरल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी FIA को यह कहना चाहूंगा कि खुदारा इसकी इस बयान के ऊपर जो है वो सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, इसके ऊपर जो है वो गिरफ्त की जाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस तरह के फितनों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।